Good morning, students. How are you? Fine. Okay. We are reading Part A, Unit 3, Basic ICT Skills. And in previous class, I had taught the chapter ICT and its impact, which was session 1. Student, from that session, we have learned many things. Then I am going to describe it in brief. What we have learned? We have learnt about the ICT, like full form of ICT, introduction of ICT, role and importance of ICT, ICT's impact on our personal lives, on our work lives, in our daily lives, and ICT tools were also there, mobile apps, mobile software, and smartphone versus tablet versus laptop. Okay? Students, after completing the session 1, I have taken an online test also, and most of you were performed well. So you all keep it up. Now today I am going to start session 2. तो आइए आज हम यूनिट 3 बेसिक ICT स्किल का दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं. Then what is the topic of session 2? Basic of a computer system and a mobile device. Yes, this is today's topic. And in this chapter, what are the learning objectives? In this chapter, the learning objectives are functioning of a computer, characteristics of a computer, features of a mobile device. Student, let's start with its introductions. These days, computers are put to use for all sorts of application ranging from complex calculation in the field of frontline research, engineering simulations, down to teaching, printing books and recreational games, etc. As we all know, कंप्यूटर जो है सबसे फ्रंट लाइन पे इसका उपयोग हो रहा है. हर एक एरिया में, हर एक फ्रंट लाइन रिसर्च पे इसका यूज़ हो रहा है, हर एक फील्ड में. जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना हो, प्रिंटिंग बुक्स प्रिंट करना हो, या कोई भी गेम हो, मनोरंजन गेम हो, उसके लिए, ये सब सारे चीज़ के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करना होता है. ये सब के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, द ease with which computers can process data, store and retrieve it painlessly have made them inevitable in office and business environment. कंप्यूटर हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कंप्यूटर हमारे डेटा को बहुत ही ईज़िली प्रोसेस करता है, स्टोर करता है इसको, और it become essential at our workplace, in office or our all business environment also. As the area of applications of computers are confined only by limitations. As we all know, कंप्यूटर एरिया हर एक एरिया का हर एक इसका एप्लीकेशन का एक अपना लिमिट है. As we all know, in fact, any task can be carried out systematically can be performed by a computer. कंप्यूटर किसी भी टास्क को, किसी भी वर्क को बहुत ही व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिकली कर लेता है. Therefore, it is essential for every educated person today to know about a computer. It is very essential, student. इसलिए जो है आज सारे एजुकेटेड पर्सन के लिए ये बहुत ही एसेंशियल हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है.
कंप्यूटर के बारे में जानना, इस स्ट्रेंथ, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं वो जानना, इट्स वीकनेसेस, क्या कमजोरियाँ क्या खामियाँ हैं इसके वो जानना, एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, इसके जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में जानना। एंड स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सेशन। ओके, सो वॉच एंड लिसन इट केयरफुली होना चाहिए। और दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सेशन। तो इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे और आप इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। व्हाट इज़ कंप्यूटर? Students, first of all, to move on in this particular session, I would request you all to answer few questions what I have mentioned here. Here is only one question. What is computer? Think. Have you remembered the definition of computer? I think so. You all know. Students, we are already reading from our childhood. Are we or not? हम लोग अपने बचपन से ही कंप्यूटर का डिफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या है कंप्यूटर? A computer is an electronic device which help us to perform variety of operation according to a set of instruction which is called program. Or we can say in general terms, a computer is a group of electronic devices used to process data, or it can also be said that a computer is an electronic device that can perform a variety of operation in accordance with a set of instruction called program. As you all know the definition of program, what is program? Program is a set of instruction. Okay students, then come to next. Here is the picture of computer. What is this? This is a computer system which has how many units? 4 units. This is a computer system which has 4 units in it. तो कौन से 4 यूनिट हैं? I have already indicated. The monitor is output unit and the keyboard mouse is input unit and the CPU is processor and the disk is storage. तो इस चैप्टर में हम लोग इस यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, I think you all have seen this structure carefully and you all have kept these 4 units in your mind. Okay, come to the next. A computer. A computer can be thought of a combination of, as we all know, hardware and software which transforms some data into information. Hardware. ये जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? ये सब सारे टर्म्स हैं। अब हम लोग इस टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो पहले भी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं
लेकिन हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्लास 9 में। तो देन लेट अस लर्न व्हाट these terms mean. The first one is hardware. What is hardware? We can say that the hardware is a physical parts of computer which we can touch. For an example, monitor, keyboard, mouse, etc. that comes in the category of hardware. हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट्स है कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकते हैं। क्या आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। मॉनिटर को? ऑफ कोर्स। तो व्हाट आर दिस ऑल आर हार्डवेयर। नाउ द सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। Software, it refers to the instructions, programs that tell computer what to do. Software means these are the set of instructions which carries a particular task. Which carries a particular task, and hence here we can say that it tell the computer what to do. The example is gaming software which you play online, and the offline also some game are available. The Microsoft software, etc. Many more software which we use in our daily life. Now next one is data. Data, unprocessed raw fact and figures are data. Here I have given an example also. A name like Ram, some marks 72.5%, and an year 2019, etc. are what? Are data. Now I will give one more example. Listen, student. If we go on with the example of these two, data and information. Information what? It refers to the processed data. Data is unprocessed of fact, and information is processed data that is meaningful. Example, above data can be converted into the information as Ram, who passed in 2019, secured 72.5% marks. Now start the example. Student, if we go on with the example of these two, data and information, we can say that the data, for example, I have given you a task to take out the information about a particular topic known as computer. Okay, what I have given? I have given you all a task to take out the information about a particular topic. What is the topic? Topic is computer. So now what you will do? You will just go to the Google and take it out all the required information, whatever you got from the Google. Then student, the things whatever you have taken out from the Google comes in the category of data. And when you just go through all the topics that you have copied from the Google and you read it and you just check it out, what are the important points, and chalk the important points only. That particular things is called information. That means the data which is processed is called information. कितने भी डेटा हैं, जो भी है
डेटा, उसको हम अलग अलग बाइफरकेट करते हैं। मीन्स कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं कहीं से भी उठाकर, तो उसको हम लोग एज अ डेटा बोलते हैं। बट वेन, जब हम उस टॉपिक का कोई मीनिंग निकलता है तो उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर साफ साफ आपको एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल, डेटा में एग्जाम्पल क्या है, नेम राम, और एग्जाम्पल में क्या है, मार्क्स है, उसके बाद ईयर है। तो ये सब रॉ फैक्ट्स है, इसका अभी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, राम हु पास्ड इन 2019 secured 72.5% मार्क्स, तो इट बिकम्स information. Okay, next we will move towards the next topic. What is the topic? Functioning of a computer. Student, before we start discussing the functioning of a computer, let us understand the way we function. To understand this, we will take some example. Which type of example? Input, process, output. And the example, the first example is Mummy's order purchasing cake and pastry. And in process, what happened? Going to bazaar and purchasing. And what is the output now? Output is purchased cake and pastries. Student, consider a case when your mother asks you to bring a cake and pastries from the market. Then what you do? You go to the market, purchase both the things and give it to your mother. तो जब आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर किया परचेज़ करने के लिए केक एंड पेस्ट्री, तो ये क्या हो रहा है? ये इनपुट हो रहा है, थिंग्स टू वर्क अपॉन। आफ्टर डैट प्रोसेस में क्या हुआ? प्रोसेस में आप क्या किए? गोइंग टू बाज़ार एंड परचेजिंग, आप बाज़ार गए और मार्केट से परचेज़ किए क्या? पेस्ट्री एंड केक। ठीक है, ये आप बाज़ार जा रहे हैं किस लिए? परचेज़ करने के लिए। ये हमारा क्या है? प्रोसेस है। एंड व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? आप बाज़ार जाकर क्या किए? केक और पेस्ट्री को परचेज़ कर लिए और लाकर अपनी माँ को दे दिए। दिस वन इज़ द आउटपुट। I have given 3 examples to clear it. Okay, now the next example is your desire to make a phone call at number such, and second one is making phone call, and the output is chat with your friend. Means student, you want to talk to one of your friends. Okay, his phone number is 74 such. So you dial up the number and speak to your friend. When you desire to make a phone call of these numbers, on these numbers, then what is this? This is input. Means आपको ये करना है, आपने अभी ये सोचा कि मुझे ये करना है। और उसके बाद मेकिंग फ़ोन कॉल, जब आप उसको कॉल कर रहे होते हैं, आप पहले सोचिए कि मुझे कॉल करना है, उसके बाद वो इनपुट हो गया। और जब आप उसको कॉल कर रहे होते हैं तो वो क्या हो रहा है? वो एक प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जब आप उनसे बात कर लिए तो डैट इज़ द, बात करके फ़ोन रख दिए तो डैट इज़ द व्हाट? आउटपुट। ठीक है, आपने सोचा कि मुझे बात करना और आपका बात हो गया, तो बात करना है ये सोचा, तो ये इनपुट है। उसके बाद सोचने के बाद क्या किया? कॉल किया। कॉल किया तो यानी प्रोसेस चला उसके ऊपर, और हमारा रिज़ल्ट, बात किस लिए करना था हमें? अब बात किससे करना था? अपने फ्रेंड से, और बात हो गई तो वो हमारा रिज़ल्ट आ गया, वो हमारा क्या हुआ? आउटपुट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, मेकिंग अ कप ऑफ टी विथ गिवन इंग्रेडिएंट्स। एंड नेक्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, and what is the result? Output, prepare tea.
Then listen student, if your mom has to make tea, so she takes certain things, means ingredients, that is what, 3/4 cup of water, half teaspoon tea leaves, half teaspoon sugar, and half cup of milk. She makes the tea by following certain steps like boiling water, adding tea leaves, sugar and milk. Finally you get prepared tea. तो हमारा जो इंग्रेडिएंट्स था टी बनाने का, हमने सोचा कि टी अब चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चाय बनाने के लिए हमें चाहिए था वाटर, चाहिए था टी लीव्स, चाहिए थे शुगर और मिल्क, ये चाहिए था। तो ये हमारा इनपुट हो गया सारा। अब ये हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो गए, तो हमें क्या करना है, हमें वाटर को बॉईल करना है, टी लीव्स ऐड करना है, शुगर एंड मिल्क ऐड करना है। तो ये सब सारा क्या हुआ, ये सब सारा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस चला चाय बनाने का, ठीक है। और जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक आउटपुट आएगा नहीं। हमने सोच लिया कि मुझे 1 कप चाय पीना, तो क्या मैं चाय पी लूँगी, नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, उसको बनाना होगा, और बनाना होगा तो वो फिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब चाय बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा चाय बनकर तैयार है, अब हम इसको पी सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आउटपुट। नाउ इट इज़ क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक सो। Come to the next. Functional components of a computer. A student, this example illustrates the way we human beings function. Consider all the 3 examples. There is something common in them. But in all the examples, certain things were needed to work upon. The actual work was then carried out accordingly, and finally the result was obtained. Okay, all the examples undergo these 3 stages. The first stage, things to work upon, is called input stage. The first stage, things to work upon, is called what, input stage. The second stage, the actual work being performed, is called process stage. And the third one, the result, is called output stage. Students, some input is needed to accomplish a task. A process is carried out on the input to obtain the output. जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या आपके सोच लेने से कुछ हो जाता है, नहीं, उसको करना पड़ता है। जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो अगर मैंने सोच लिया इंजीनियर बनूंगा, तो क्या मेरे सोचने से मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं। उसके लिए मुझे क्या करने का पड़ेगा, उसके लिए मुझे इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद वो हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो हमारा रिज़ल्ट क्या हो गया, रिज़ल्ट हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। Students, every task follows this input process output cycle. Every task, we can say in short form IPO cycle. Input, process, out. I, input, P, process, O, output. A computer is not an exception to this rule. A computer also follows the IPO साइकिल। अभी मैंने जैसे जनरल लाइफ का कॉमन एग्ज़ाम्पल दिया, तो ये सारे एग्ज़ाम्पल भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के थ्रू चलते हैं। तो इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी कुछ अलग नहीं है,
वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करता है, सेम साइकिल फॉलो करता है, IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. It needs certain input carries out a process and produce the output. Therefore, the functioning of a computer can be summarized in the form of the note that you see in your book. A computer takes an input, carries out a process upon it and produces an output. Okay. Student, in the coming section we will get to learn about the functional units of a computer. So let us move towards the next sections. Functional components of a computer. इससे पहले मैंने कंप्यूटर के 4 यूनिट्स के बारे में बताया, उसके बाद उसके जो टर्म्स हैं उसके बारे में बताया. अब हम कंप्यूटर के मेनली 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. अ कंप्यूटर मेनली हैज़ हाउ मेनी फंक्शंस? 4 functions. The first one is accepts data. It comes in input, processes data, comes in processing and produces result or output. It comes in output or stores result. It comes in storage. What are these? These are the functional components of computer. Students, what are these? These are the basic structure of a computer. Look it carefully. The middle one is processor or main memory or we can say main store. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम इनपुट करते हैं. इनपुट करने के बाद प्रोसेसर क्या करता है? इनपुट किसके थ्रू करते हैं हम? कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन का इनपुट करना, जैसे कि मैंने बोला कि चलो एक लेटर टाइप करो या PPT बनाओ, तो ये सब किसके थ्रू करेंगे? सबसे पहले हम माउस का यूज़ करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, माउस को क्लिक करके ओपन करेंगे या कीबोर्ड तक के बटन को प्रेस कर कर हम टाइप करेंगे. तो व्हाट आर दिस? दीज आर इनपुट डिवाइसेस. तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे अब इनपुट करने के लिए. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो प्रोसेस करेगा. कौन प्रोसेस करेगा? प्रोसेसर. प्रोसेसर हमारा कहाँ होता है? प्रोसेसर डिवाइस किसको बोलते हैं हम लोग? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और इसी प्रोसेसर में हमारा मेन मेमोरी भी अवेलेबल होता है. आपके पास मेमोरी है? हाँ है, सबके पास है. ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है. तो कंप्यूटर के पास जो मेमोरी उसको भी हम लोग वही सेम चीज़ बोलते हैं. मेमोरी इज़ द स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ द स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. तो जब प्रोसेस होते रहता है तो उतने देर तक, जितने देर तक वो डेटा प्रोसेस करता है तो वो उसको होल्ड्स करता है. कौन होल्ड्स करता है? मेमोरी होल्ड्स करता है. और आप लोग ये भी जानते हैं कि हम एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज़ करते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जांपल बताइए. यस, CD, पेन ड्राइव, these are all the example of external memory or we can say that secondary memory also. Okay. After that आउटपुट यूनिट. तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? आउटपुट यूनिट जो रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस देता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि एक लेटर टाइप कीजिए. ठीक है. तो आपने लेटर टाइप करने के लिए क्या यूज़ किया? सबसे पहले माउस टच किया, कीबोर्ड टच किया
और कीबोर्ड से टाइप किया लेटर। तो दिस ऑल आर डन बाय इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, माउस इज़ ऑल्सो इज एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर पे। जो भी हम टाइप कर रहे हैं, तो जैसे हमने कोई भी लेटर को टाइप किया, ए को टाइप किया, तो ए को टाइप किया, ये कंप्यूटर को किसने बताया? वो ए टाइप करने के बाद वो हमारे स्क्रीन पर कहाँ से आया? वो हमारे स्क्रीन पे थ्रू प्रोसेसर आया। प्रोसेसर हमारा कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी प्रोसेसर में हमारा मेन मेमोरी भी अवेलेबल होता है, और इसी प्रोसेसर में हम एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज़ करते हैं। उसके बाद लेटर टाइप कर लिया आपने, कंप्लीट कर लिया, उसको सेव किया, ये सब सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद सेव करने के बाद जब हम वो लेटर को देख रहे हैं, तो वो कहाँ देख रहे हैं ये बताइए? हमारे मॉनिटर पे। मॉनिटर हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम उसको देख रहे हैं। तो हमारा मॉनिटर जो है वो किस तरह का डिवाइस में आ गया? वो आ गया आउटपुट डिवाइस। और आई एम सेइंग टू गिव मी द प्रिंटेड लेटर, तो फॉर डैट व्हाट यू डू? यू प्रिंट दैट लेटर। तो यू प्रिंट फ्रॉम विच डिवाइस? यू प्रिंट योर लेटर फ्रॉम printer. Then printer is also come in which unit? Output unit. Or we can say that printer is an output device. Okay, now clear? Students, since a computer follows input process output cycle, the first stage is परफॉर्म इन कंप्यूटर बाय इनपुट यूनिट। अभी मैंने बताया है इसके बारे में। सेकंड स्टेज इज परफॉर्म बाय इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एंड द थर्ड स्टेज इज परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट, एंड ऑल दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? अभी मैंने मेमोरी का एक डेफिनेशन दिया था, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग processing. Thus, the basic structure of a computer is as shown previous slide. मैंने previous slide में basic structure दिखाया था कंप्यूटर का। ये है हमारा basic structure. Student, the main memory holds the input and intermediate output during the processing. तो हम मेन मेमोरी किसको कहते हैं? प्रोसेसिंग, जो भी हम इनपुट डिवाइस से इनपुट किए हैं, या माउस का यूज़ करके या कीबोर्ड का यूज़ करके, तो उसको जब वो प्रोसेस करता है, तो उतनी देर तक जो मेमोरी उसको होल्ड कर रखता है हमारे डेटा को, तो उसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। One note is also here, student. The input unit of a computer system is responsible for input phase. Okay? जो इनपुट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो सिर्फ इनपुट फेज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस फेज, एंड द आउटपुट सेम, आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट फेज। Student, in nutshell, the functional components of a computer can be summarized as follows: input function, output functions, processing function, storage functions. तो ये 4 फंक्शंस के बारे में आइए कुछ जानते हैं। इनपुट फंक्शंस, जैसे अभी मैंने नोट्स में पहले ही बता दिया है, it is responsible for providing the information in the computer and is performed by input unit. Or for this purpose, input unit uses standard input devices such as, what is the example? Keyboard, mouse, scanner, barcode reader, etc.
By using these devices, what we do? By using these devices, we do input functions. The next is output function. It is responsible for displaying the data input to computer or the processed data in human readable form and is performed by output unit. आउटपुट फंक्शन जो है वो क्या करता है, जो भी डेटा हम इनपुट किए हैं और सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस किया है, प्रोसेस कर वो ह्यूमन रीडेबल, जिसको ह्यूमन पढ़ सकता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसमें वो प्रोसेस किया, चेंज किया एंड इस पर रीडेबल फॉर्म में चेंज करता है और जो डिस्प्ले करता है वो कहाँ करता है, आउटपुट यूनिट में. फॉर दिस पर्पस द आउटपुट यूनिट यूजेस स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस सच एज, जैसे मैंने बताया कि हम अब जो भी टाइप करते हैं वो कहाँ दिखता है हमें, मॉनिटर पे और स्क्रीन पे. अगर उसको वो हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रिंट करना पड़ता है. तो प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. स्पीकर क्या करता है, स्पीकर से आवाज़ आती है, तो स्पीकर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. वेरियस आउटपुट डिवाइसेस शैल बी कवर्ड इन next session. Okay student, now come to the next point. The next function is processing function. This is responsible for carrying out the given instructions on given data. जो भी instructions डेटा हम इनपुट करते हैं और उसको कैरी करता है, प्रोसेस करता है हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन. इट इज़ परफॉर्म बाय सीपीयू. इससे मैंने अभी बताया ऑलरेडी कि हमारा प्रोसेस, हमारे डेटा को प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है. टू कैरी आउट दिस फंक्शन सीपीयू यूजेस फॉलोइंग कंपोनेंट्स. तो ये सारे काम करने के लिए सीपीयू के पास भी ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स है जिसका वो यूज़ करता है. द फर्स्ट वन इज़ ALU. A for arithmetic and L for logic and U for unit. Arithmetic and logic unit. तो arithmetic और logic unit क्या करता है? It is responsible for carrying out arithmetic instructions like adding, subtraction, multiplication, division और logical instruction greater than, smaller than, equal to, एक्सेट्रा. तो जितने भी लॉजिकल अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, डेटा इंटर करते हैं, तो वो उस पर फंक्शंस हमारा कौन सा कंपोनेंट्स करता है सीपीयू का, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो सिर्फ इसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर हम कोई कैलकुलेशन का यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इस पे हमारा फंक्शन करता है ALU कंपोनेंट्स. एंड द नेक्स्ट वन इज़ CU कंट्रोल यूनिट. दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, and hence it supervises and control required components to carry out the instructions. कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, C फॉर कंट्रोल. तो ये सिर्फ जो भी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है. इट मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में वो सुपरवाइज करता है और बाकी को कंट्रोल करके रखे रहता है वो, कि उसके वो जब जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देंगे. तो ये किसका वर्क है, ये CU कंट्रोल यूनिट का. एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और वी कैन से डेट इट मेन मेमोरी ऑल्सो. दिस मेमोरी इज़ मेड अवेलेबल टू CPU to store data and instructions being processed. Memory in detail shall be covered in the next session. Okay, now
come to the next, storage function. It is responsible for storing. स्टोरेज का मतलब ही है कि स्टोरेज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन permanently and is performed by storage unit. Various storage devices like hard disks, CDs, DVDs, USB drive, etc. comprise of this unit. Storage device shall be covered in next session. Okay student, as we all know storage device का काम ही है स्टोर करना. जैसे आप लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना, CD यूज़ करते हो, DVD यूज़ करते हो, तो ये सब क्या यूज़ किस लिए करते हो? किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करके रखने के लिए. और अगर कंप्यूटर में भी हम कुछ सेव करते हैं तो किस लिए सेव करते हैं? ताकि हम उसको बाद में देख सकें, उसका यूज़ कर सकें, उसको एडिट कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें. तो इसके लिए हम लोग कंप्यूटर में भी इसको स्टोर कर कर सेव कर कर रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में इसको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन का टॉपिक ही हमारा यही है, मेमोरी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. I think you all get all points what I have taught today to you all. Until now you have any confusion related to any topics, then you can ask me in comment box. Okay, thank you students. Here is one course, read it carefully. Teachers can open the door but you must enter it yourself. Thank you my dear students. Have a good day. I am Swati Sinha, computer teacher.